Aujourd'hui, on va apprendre le subjonctif du présent. So, il y a 4 temps au subjonctif dans la langue couronne. There are 4 tense, you can say, in the subjunctive in the current language. On emploie 2 temps. So we are using 2 tenses here, le présent et le passé. Is one of them is present subjunctive and the second one is past subjunctive. So dans la langue littéraire, in the literal language, on emploie aussi l'imparfait et le plus que parfait. Voir l'appendice, page 384. So we will do later, those are on 384, but now we are covering here subjunctive present and subjunctive passé. So le subjonctif de présent forme. So first we're going to learn how we form, and I know that you know la majorité des verbes ont un subjonctif régulier. The majority of the verbs, the subjunctive verbs have, I mean, regular verbs. On forme le subjonctif avec la troisième personne du pluriel du présent. So we make the subjunctive with the third person of plural of present tense. Okay, how you can see here. So, I will make you understand, no problem. On enlève la terminaison ONT et on ajoute les terminaisons suivantes OS, OI, ONS, I, OZ, ONT. So इसमें normally क्या करते हैं, subjunctive किस तरह बनाते हैं? Simple प्रेजेंट टेंस में जिस वर्ब को भी आप subjunctive बनाना है उसके आप प्रेजेंट टेंस में जाएंगे और जो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ जो एंडिंग्स होती है प्रेजेंट टेंस में वो क्या होती है? कैन यू टेल मी? ENT नॉर्मल एंडिंग है. So just you need to take out this ENT and take the stem, take the radical part, जो main part वर्ब का होगा ENT के अलावा वो आप ले लेंगे. Then you're going to add these terminations. What you can see. Let me make my cursor more visible. So these. Then you're going to add these things. First, so first person means you. You will have to add E, then you, ES, then third person singular, EL, E. उसके बाद IONS, IEZ, ENT फिल करते हैं. So पहला वर्ब बहुत easy है. Regarder. Regarder means to watch. Can you read all the conjugations of subjunctive of this verb? Okay. Que je regarde, que tu regardes, que le regarde, que nous regardions, que vous regardiez, que il regarde. Voilà, très bien. So ये हमेशा जो subjunctive है ये que के साथ आपको नजर आएगा. Que is necessary. अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं जो remarque les trois personnes du singulier et la troisième personne du pluriel sont adontiques au présent de l'indicatif. ये बता रहे हैं कि the third person of the singular and the third person of plural are very identical, are very similar at the present tense of किस तरह present में देखें. present में je regarde, tu regardes, il regarde as it is लिखा हुआ है. ठीक है, यानी प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब हम अगर इसी वर्ब को regarde को लेते तो वो इस तरह होता. Also they are telling us that they are very similar to the present tense. Of course they are right, क्योंकि subjunctive में भी इसी तरह लिखा हुआ बिल्कुल वही एंडिंग्स है जो कि प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, ये इजी है आपके लिए. हाँ जी बिल्कुल. बस फर्क क्या क्यों के साथ लिखा हुआ. तो ये एक इन्होंने यानी एक वे बताया है इसको रिकग्नाइज करने का. तो उसके बाद la première et la deuxième personne du pluriel, first and the second person of plural, यानी nous and vous, sont identiques à l'imparfait de l'indicatif, and they are identical, yet they are very similar to the imperfect tense. So imperfect tense में आपको पता था जो nous के साथ जो conjugations यानी endings थी वो IONS थी. इसका मतलब है nous regardions का मतलब है we used to watch. ठीक है, हम देखते थे. सपोज दैट अगर मैं एक महीना पहले कोई काम करता था, अब मैंने छोड़ दिया उस काम को, या कोई टीवी देखता था तो मैं उसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि dans le soir, il y a un mois, dans le soir, nous regardions tous ensemble à la télévision. So at the evening, we all together used to watch the TV. ठीक है, nous regardions la télévision. यही देखें इन्होंने बताया कि ये इससे बहुत मिल रही है, यानी subjunctive में इसकी एंडिंग्स और इसकी एंडिंग्स सिमिलर है. ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मेशन. दो verb और deuxième group. verb और deuxième group. तो
ये सेकंड ग्रुप ऑफ द वर्ब है जो नॉर्मली IR के ऊपर एंड होते हैं, ठीक है। तो जैसे फिनिश, je, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, que il finisse। तो अच्छा, अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, क्या है जरा देखते हैं। सो अब जरा कैन यू रीड दिस troisième verb du troisième groupe, monsieur? ओके, attendre, इसकी कॉन्जुगेशंस पढ़ दूं ना? हाँ, que j'attende, que tu attendes, qu'il attende, que nous attendions, que vous attendiez, qu'ils attendent, ils attendent. ओके, वेल डन। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल देखें, entendre। entendre इज अ वर्ब व्हिच मींस टू वेट समवन, किसी का वेट करना। कि j'attends, que tu attends, you already read it, and this is the verb sortir, IR वाला वर्ब है थर्ड ग्रुप का। que je sorte, que tu sortes, qu'il sorte, que nous sortions, que vous sortiez, qu'il sorte। अच्छा, अब यूज किस तरह करेंगे, तो हम ये भी देखेंगे। सपोज अगर इसको हम subjunctive में इस्तेमाल करते हैं और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी आई वांट यू टू लीव एट 7 o'clock फ्रॉम ऑफिस, so we can say je veux que tu sortes à 7 heures du bureau, je veux que tu sortes à 8 heures pour le bureau, I want that you leave for 8 o'clock for the office। ठीक है, सो हम इसमें के साथ इसको अपनी विश का इज़हार करते हुए कर सकते। अब अगर सपोज हमें किसी को कहना है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा इंतजार करो स्टेशन पे, तो हम इसको इस तरह बोल सकते हैं, je veux que vous entendiez pour moi à la gare à 8 heures, I want that you wait for me at the station at 8 o'clock। तो इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। subjunctive irrégulier। अब irregular subjunctive में voici les verbes qui sont irréguliers au subjonctif। There are the verbs, those are irregular in subjunctive। irregular किस सेंस में, यानी जो एंडिंग्स, यानी हम जिस तरीके से इसको फॉर्म कर रहे थे प्रेजेंट में जाके नू की एंटी फॉर्म हटाई, फिर उसके बाद बिलतरतीब इसकी कॉन्जुगेशन, इसकी एंडिंग्स ऐड करी, ठीक है ना, ये तो समझ आया था। तो हाँ जी, यहाँ बिल्कुल। पर क्या है, यहाँ पर हम उस यानी उस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, इस सेंस में इसको ये इरेगुलर कह रहे हैं। सो अब देखें, आले आले को अगर हम प्रेजेंट पे रिकॉल करें तो ये था नूजालों। सो नूजालों का अगर हम ONS हटाएं, यानी आलों का ONS हटाएं, तो हमारे पास बचता था जी ALL। सो यू कैन सी के इस ALL खाली हमने ऐड नहीं किया, बल्कि यहाँ पर आय का एक एडिशन है बीच में। ठीक है, आया समझ में? जी, बिल्कुल डिफरेंट है ये। अब मिसाल के तौर पे, अब मुझे अपने बेटे को कहना है कि जी आप 7 बजे सुबह स्कूल चले जाना, तो हम इस तरह बोल सकते हैं, je souhaite que tu aies à l'école à 7 heures de matin। je souhaite, अब मैंने अपनी विश का इजहार किया, je souhaite que tu aies। अब ए जो है, हम ये इस यानी अले वर्ब की यही फॉर्म करेंगे। सो आई थिंक अले, द conjugations of ale is not written properly here, so I'm going to read it orally for you। il faut que j'ai, il faut que tu aies, il faut que il elle ait, il faut que nous ayons, il faut que vous ayez, il faut que il elle से। तो हम इसका इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, डबल एल नॉर्मली हम यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। Faire, I want you to read the conjugations in subjunctive of faire। Que je fasse, que tu fasses, que il, elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, que il fasse। Well done, very nice। अच्छा, अब now can you give me an example? Donc, par exemple, si tu veux quelqu'un qui doit faire ce travail dans le soir, comment est-ce que tu exprimes, comment est-ce que tu peux exprimer le subjonctif en disant cette sentence? I can say to anybody, il faut que vous fassiez cette truc. Well done। il faut, you can start directly, il faut, अगर आप अब simple, it is necessary, il faut que vous fassiez ce truc, it must that you do this trick, ठीक है। il faut que vous fassiez le ménage dans la maison jusqu'à 8 heures,
ये जरूरी है कि तुम 7 बजे तक 8 बजे तक घर की सफाई कर दो, ठीक है। सो il faut que vous il faut que tu fasses ce travail pour moi. It is must that you do this work for me. इसी तरह हम अपनी जो है सेकंड वर्ब है, थर्ड वर्ब है pouvoir. Pouvoir means to be able to do something, कर सकना कोई काम वगैरह वगैरह। तो इसलिए puisse हो जाएगा, je puisse, tu puisses, il puisse, nous puissions, vous puissiez, il puisse। अब sache, savoir, savoir का मतलब to know, यहाँ पर ये sache हो जाएगा। तो अब इसकी जो कॉन्जुगेशन है मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। il faut que je sache, que tu saches, que il sache, que nous sachions, que vous sachiez, que il sache। तो अब सपोज अगर मैं किसी को बोलूँ जी मैं चाहता हूँ कि आप ये जाने या ज़रूरी है कि आप ये जानिए, il faut que tu saches tout le travail, il faut que tu saches toutes les trucs pour faire या pour conduire la voiture, il faut que tu saches tous les trucs pour conduire cette voiture, यानी it is necessary that you do that you know all the tricks for driving this car, ठीक है। या हम इस तरह कह सकते हैं इसको अपनी sachez que ça ne va pas être facile, जानिए कि ये आसान नहीं हो रहा है, ये मुश्किल है वगैरह वगैरह। अच्छा उसके बाद आ जाए जी वाई मीन्स आपने नोट किया होगा जब हम कभी कोई लेटर लिखते हैं तो विये इक्खीर लिखते हैं, विये इक्खीर आखिर में जब हम उसके एंड कर रहे होते हैं विये अगवे में सैल्यूटेशंस डिस्टिंग्वे, यानी would you please इसको उर्दू में हम कह सकते हैं कि प्लीज अग्री with my respectful salutation वगैरह वगैरह। तो इसी की कॉन्जुगेशन में वो लिखा होता है। सो वुलवा बन गया वही, je वही, tu वही, il वही, nous voyons, vous voyez, il वही। अच्छा जी उसके बाद vous आइए, अच्छा यहाँ लिखा हुआ तो था मगर ये सिर्फ 3 पॉइंट हाँ आधी है ये पूरी नहीं लिखी हुई, एक मिस है बल्कि। हाँ whatever no problem। अच्छा il pleut, अब देखें ये il faut qu'il faille वही वर्ब है, यानी मस्ट, और उसी वर्ब को इन्होंने आगे subjunctive बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद il pleut, ये एक इट इज रेनिंग, यानी इट्स रेन, बारिश हो रही है या बारिश होती है, इसी वर्ब को इन्होंने यहाँ पर subjunctive बना दिया। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि यार आज बारिश हो, बहुत गर्मी है, तो मैं कहूँगा je veux qu'il pleuve aujourd'hui, je souhaite qu'il pleuve, I wish that it rains today। तो फिर इस तरह के सेंटेंस में मैं pleuve, qu'il pleuve, pleuve इस्तेमाल करूँगा। अच्छा जी अब यहाँ हमने कर लिया, अब आते हैं अफ़वाग एंड ऐत। अच्छा अफ़वाग एंड ऐत, अफ़वाग में भी इन्होंने कॉन्जुगेशन दी हुई है। अब जरा कॉन्जुगेशन पढ़िए पूरी, बल्कि प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है मैंने, देखें जरा इसको। il faut que j'ai, que tu aies, que les, que nous ayons, que nous ayons, link nous ayons, que vous ayez, que ils aient, ils aient। से, très bien। सो अब ये किस तरह इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी विश के यानी एतबार से, जो हम कोशिश करें मिसाल के तौर पे हमने जो है इसको इस तरह के सेंटेंस में इस्तेमाल किया कि je veux que vous ayez de l'argent pour tes vacances, I want that you have रकम, that you have money for your vacation, ठीक है। तो हम इसको इस तरह के सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। je sois, tu sois, être बन जाएगा sois, je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit। Je veux que tu soyez à l'heure pour la classe de français, pour demain वगैरह वगैरह। I want that you be on time for French class। je veux qu'il soit, il ne soit pas bête, मैं चाहता हूँ कि वो बेवकूफ ना बने, ठीक है। या हम इसको इम्पेरेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, ne soyez pas bête, बेवकूफ मत बनिए, ne sois pas bête, don't be foolish। Attention, et soit sont les seuls subjonctifs avec un T। इन्होंने अटेंशन कराई है कि ए यानी ए और ये सुआ जो है ये ओनली subjunctive है जो कि एक टी के साथ है या टी के साथ एंड हो रहा है। अच्छा इसका यूज क्या है? इसमें जो
आवाज़ की और आले की बहुत मिलती-जुलती नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशंस? बिल्कुल, इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मिलती है। ज़ई, त्यूआई, इलज़ई, नुज़ाइयों, वुज़ाइये प्रोनाउंसिएशन मिलती है। सही कह रहे हैं। अच्छा जी, तो अब आ जाएँ अब हम इसका यूज़ में हम इसको देखें एम्प्लॉय बेसिकली इसको यूज़ करना, प्रैक्टिस करना। सो on rencontre 4 emplois courants. हमें मिलती हैं तकरीबन 4 करंटली इसका यूज़ मिलता है। क्या है जी? जो सब्जंक्टिव सॉल्व यानी हम अगर खाली सब्जंक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एग्जांपल आगे बताएँगे। le subjonctif après certains verbes. सब्जंक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर आफ्टर सर्टेन वर्ब हैं। वो कौन से वर्ब है ये भी देखेंगे। तो सब्जंक्टिव आफ्टर सर्टेन कंजक्शन या कोई खास किस्म के कंजक्शंस होते हैं, उनके साथ हम ये किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं नॉर्मली जो एक किसी वजह से वर्ड को मिलाते हैं। मिसाल के तौर पर bien que, मिसाल के तौर पर je vous ai déjà compris, je vous ai fait déjà compris le passé composé, bien que vous sachiez déjà, ठीक है। यानी मैंने आपको अच्छी तरह पासे कंपोजर समझा दिया, ऑल्दो कि यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है, बेटर, थोड़ा बहुत पहले ही जानते थे। तो ये इस तरह के कंजक्शन तो ये भी आगे आएंगे। उसके बाद है सब्जंक्टिव आपके यहाँ ऑन रिलेटिव, सब्जंक्टिव आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन, ये इम्पेरेटिव वर्ड। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट पेज पे। ओके, इस पेज के ऊपर जी ला ओके, tu peux regarder facilement ou est-ce qu'il y a un problème avec Zoom? Ça va? C'est visible pour toi? Is this visible for you? यस यस ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन पढ़ा जा रहा है सही से। Le subjonctif seul est rare, यानी अकेला subjonctif जो है वो मतलब रेयर है, ठीक है। On le trouve dans des phases toutes faites comme, हम ज्यादातर इसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। on le trouve dans des phases toutes faites comme, अच्छा यानी छोटे जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये ना लिखा हुआ और लिखा हुआ आगे। अब मिसाल के तौर पे vive le roi, ये इट्स अ टाइप ऑफ स्लोगन। I think long live, yes it's written, the meaning also written, long live the king, ठीक है। तो अब देखें ये इसमें कोई आगे पीछे यानी आपको कोई सेंटेंस नहीं है, बस ये इन्होंने बताया कि इस तरह भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद आंसी स्वातिल, सो बीट, तो ये तो इसकी जो अभी हम पीछे पढ़ रहे थे 4 किस तरह का यूज है पे इस लास्ट पेज पे एम्प्लुआ के अंदर, तो ये उसका पहला बुलेट जो है कवर हो गया। अब सेकंड में देखें जी क्या ou bien pour exprimer l'impératif, ou bien pour exprimer l'impératif à la troisième personne du singulier et du pluriel, या जो है अगर आप इम्पेरेटिव बयान कर रहे हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। वो कौन सा होगा? थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, एक मिनट, troisième personne du singulier, यस थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा et de pluriel, प्लूरल भी हो सकता है। किस तरह कि alors qu'il vous batte, let him beats you, alors qu'il vous batte, उसके बाद से promener, लेट्स देम गो टू टेक अ वॉक, यानी हम इसको इम्पेरेटिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। बस इसका ये एक नॉर्मल समझ आया। अच्छा, lo subjonctif après certains verbes en emploi le subjonctif actif। अब जरा ये पढ़िए और मुझे बताइए ये आ से क्या है, बल्कि नंबर 2 को आप पढ़ें और मुझे बताएं कि मतलब आप क्या सीखने जा रहे हैं इस एरिया में पर्टिकुलरली। Les subjonctifs après certains verbes, on emploie les On subjonctifs emploie, on après. emploie, On emploie les subjonctifs après les verbes de volonté, well done, les verbes de vouloir que, désirer que, souhaite que, souhaiter, souhaiter que, exiger que, demander que. well done, very nice।
तो यानी अब आप ये कह रहे हैं subjunctive after certain verb, यानी subjunctive after certain verb, और नाम प्लूरल subjunctive पे हम इसमें subjunctive इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ले verb do, यानी इन verb को अगर हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करें तो इसके बाद अच्छा ले verb de volonté, ऐसे verb जिसके अंदर volunteer हो, जैसे कि इन्होंने दिया vouloir के, चाहना, désirer के, desire होना कोई चीज, souhaiter के, wish करना, exiger के, जरूरी होना, demander के, ask करना कोई चीज पूछना। अब इसका यूज देखें, je ne veux pas qu'il me batte, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे पीटे, या I don't want him to beat me, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। La cour exige que le valoir soit condamné, la cour exige que le अच्छा voleur, pardon, je vous demande pardon, voleur soit condamné, court demands that the thief be condemned। अच्छा, तो अब इस तरह के वर्ब में यूज होगा। उसके बाद हम आ जाएंगे remarque। La construction de verbe vouloir souvent est très différent dans les deux langues। Construction of the verb यानी vouloir की जो है वो very used है, बहुत ही यानी très différent dans la langue। इसका use जो है different है, यानी two way में इसका use है, differently use है। और anglais यानी English में I want you to, police infinitive हम इस्तेमाल कर देते हैं normally। en français on dit je veux que, यानी अगर ऐसे जुमले जो जिसमें हम इंग्लिश में नॉर्मली आई वांट यू टू इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आई वांट यू टू ईट ऑन टाइम, आई वांट यू टू गो कॉलेज ऑन टाइम, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम subjunctive इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, en français on dit je veux que vous, आगे सब्जेक्ट अंडर इन्होंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी का लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस subjunctive वर्ब इसके आगे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिव। I want you to listen to me, je veux que vous m'écoutiez, pardon, je veux que vous m'écoutiez, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सुने, ils veulent que nous partions, वो चाहते हैं कि हम जाएं, ठीक है। अब les verbes de nécessité, il faut que, il est nécessaire que, avoir besoin que। अच्छा जी, इसके अंदर आपने क्या करना है, ऐसे वर्ब जिसके अंदर नेसेसिटी पाई जाती है, जरूरत हो, फोकस किया गया हो, जोर दिया गया हो किसी चीज के ऊपर, हम subjunctive इस्तेमाल करेंगे फ्रेंच में। il faut que, ये तो बड़ा इजी वे है जो कि मोस्टली हम सीख चुके हैं। il est nécessaire que, न्यू वर्ड आई थिंक, nécessaire que, avoir besoin के, ये भी नया है हमारे लिए, avoir besoin के यानी when you needing something। il faut que je sorte, it is necessary that I go out, il a besoin que vous l'admiriez, so he needs that you admire him। अच्छा जी, अब मुझे जरा ये आप सी पढ़ के बताइए प्लीज। Le verbe de sentiment, être content, triste, fâché que, फैशन, बेसिकली फैशे होता है, थोड़ा सा ए को इसमें कम, fâché que, aimer que, adorer que, préférer que, regretter que, et l'expression c'est dommage que। क्या सी के अंदर मुझे बताएं कि मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सी बुलेट इस पॉइंट में। जो वर्ब्स जो सेंटिमेंट वाले हैं, इमोशन शो करने वाले हैं, उनके साथ भी ये यूज होता है। ठीक है जी, तो द इमोशनल वर्ब या ऐसे वर्ब जिसमें सेंटिमेंट्स हो, जैसे आप कहना चाह रहे हैं être content, to be happy, être is a verb to be and content is happy, triste To be happy, हाँ। happy, bad feeling जिसको यानी sad हो, fâché anger हो, angry हो, aimer के, adorer के, préférer के, regretter के, regret हो अगर कोई l'impression, c'est dommage के, या कोई expression है dommage, that's pity। Nous sommes contents que vous compreniez, हम खुश हैं कि आप समझ रहे हैं, we are happy that you understand। Nous sommes contents que vous compreniez। So this was something new for you also। Can you read the second sentence please?
Les hommes adorent qu'on les écoute, écouter, les écouter. Très bien. Les hommes adorent qu'on les écoute. Men love to be listened to. ठीक है. Men love to be listened. अली adore क्या बोलेंगे अगर हम बोलेंगे अली चाहता है कि हम उसको सुने? Ali adore qu'on l'écoute. On l'écoute. Lui écouter. Lui écouter. On l'écoute. On l'écoute. On l'écoute. ठीक है. एल अपोस्ट्रोफी आ जाएगा. Okay. इसकी जगह यानी ई इसकी जगह एल ठीक है. अपोस्ट्रोफी आ जाएगा और अदोर इस्तेमाल होगा ई तक के. मिसाल के तौर पे इकबाल ठीक है, अदोर ठीक के है. on l'écoute. इकबाल चाहता है कि हम सुने. Mon enfant toujours adore l'écoute. मेरा बच्चा हमेशा चाहता है कि हम उसको सुने. ठीक है. je vous que अब मैं अगर बोलूं मैं चाहता हूँ उसको सुनना तो je vous que l'écoute भी हो सकता है. ठीक है. je veux que l'écoute. I want him to listen directly. अच्छा. मुझे c'est एक dommage. मिनट दे देंगे मुझे सर. Sure. मैं एक मिनट. Ok, d'accord. Donc, on était ici. We were here. C'est dommage. Are you with me? Yes. So, c'est dommage. That's pity. Que vous ne l'aimiez pas. It's too bad. You don't love him. You don't love him. ठीक है. C'est dommage que vous ne l'aimiez pas. मैं ये बुरा है कि आप उसको पसंद नहीं करते हैं. अच्छा, अब डी पॉइंट पढ़ें और मुझे बताएं क्या होगा. Le verbe de doute. Douter que. Il est possible que. जिसमें जब डाउट शो करना हो या जैसे पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी शो करनी हो. Je doute que vous respectiez votre mari. I doubt that you respect your husband. Donc les verbes de doute, ऐसे वर्ब जिसमें डाउट हो. Doute que तो इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं. Il est possible que. Je doute que vous respectiez votre mari. Pardon. मुझे शक है कि तुम अपने शौहर का वो करती हो, रिस्पेक्ट करती हो. ठीक है. I doubt that you respect your husband. Il est possible qu'elle obtienne un divorce. It is possible that she will get a divorce. आ रहा समझ में? इजी है जी. ठीक है. तो अभी मैंने कहा जी जब हम कर ही रहे हैं तो एक चीज बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में करें ताकि ये कि आपको आगे जो है ना वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम. अच्छा. Donc on va passer sur la prochaine page. Donc donne-moi une seconde s'il vous plaît. Oui, c'est la prochaine page ici. Donc on avait fait jusqu'à 196. अच्छा जी. ई पढ़ें जरा मुझे बताएं क्या है भाई की कहानी. हाँ अब आपको नजर आ रहा होगा. हाँ जी. Un grand nombre de verbes comme attendre que, proposer que, suggérer que et des verbes impersonnels, comme c'est normal. Le plus simple est que c'est important que, il vaut mieux que, il est temps que, il suffirait que. Voir une liste plus complète dans l'apprentissage. Page 380. Okay, so a grand nombre de verbes, yani a big number of the verbs come like attendre que, yani attendre के साथ इस्तेमाल हो, proposer que, to propose some, suggérer que, verbe et de verbe impressionnel और impersonal verb के साथ. अच्छा. अब कम से नॉर्मल लाइक दिस इज नॉर्मल. le plus simple है कि अगर हम इस तरह बोलना हो यानी सिंपल वर्ड इस्तेमाल करना हो जुमले में तो इस तरह बोलेंगे. c'est important कि अगर हम ये बोलना हो दिस इज इम्पोर्टेंट दैट के साथ subjunctive इस्तेमाल कर सकते हैं. il veut mieux कि यानी ये जरूरी है, बेहतर है, ये बेहतर होता है. il veut mieux कि ये बेहतर है कि. il est temps कि
अच्छा, उसके बाद il vaut mieux que, il est temps que, il suffirait que, यानी ये इनफ था, वो अभी इन्होंने रेफरेंस किया हुआ है। अच्छा जी, la plus simple est que vous ayez appuyé. La plus simple est que vous ayez appuyé. This is simple that you should go to the, you go on foot, पैदल जाइए. This is simplest is for you to walk. It's written in English. So also. अच्छा जरा ये मुझे पढ़ के बताएं सेकंड वाला. Attendez के यहाँ से. Attendez qu'il vous envoie de l'argent. क्या है इसका? अच्छा, wait until he sends you some money. Attendez qu'il vous envoie. Il vous envoie होना चाहिए. Il vous envoie de l'argent. इंतजार कीजिए कि वो आपको रकम भेजे. Il vaut mieux que nous cherchions dans les petites annonces. It's better to look in the wanted. So यानी बेहतर है कि हम मुझे एडवर्टीजमेंट होता है उसके अंदर देखें. अच्छा जी, अब यहाँ एक थोड़ा सा और l'indicatif après le verbe qui exprime les idées suivantes. इस तरह की वर्ब पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फॉलोइंग आइडियाज हमें. ओपिनियन, सपोज दैट अगर कोई ओपिनियन इसका इजहार करना है आपको, कौन से यानी आई थिंक दैट, ख्वाक के मतलब बिलीव दैट, आई बिलीव दैट. मिसाल के तौर पे je crois que Monsieur Iqbal vienne pour la classe de français aujourd'hui. I believe that Mr. Bilal come to take class tomorrow. Je trouve que il est parti déjà. Il part, pardon. इसके साथ subjunctive इस्तेमाल होगा. Declaration, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर आपने डिक्लेरेशन करना है, दी के, admettre के, déclarer के, सारा लिखा हुआ भी डिक्लेयर करना वगैरह वगैरह. Certitude, ऐसे वर्ब जिसमें हम मतलब यकीनी कोई चीज हो, certitude हो, certain things हो. ठीक है, तो être sûr, जैसे मैं श्योर हूँ. certain, certain होगा, फेमिनिन के साथ certain हो जाएगा. एविड, यानी क्या मतलब एक जाहिरी जिसको आप कह लें, एविडेंट. आई थिंक le verbe espérer, और उम्मीद जाहिर करना. Je pense qu'il va pleuvoir. मेरा ख्याल है कि अच्छा, अब देखें subjunctive tense में इसके अंदर एक चीज ऐसी है कि आप यानी जो जरूरी नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो आपने अपना एक्सपेरिमेंट subjunctive में ही यूज करना है. आप उस बात को प्रेजेंट इंडिकेटिव में भी कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में भी बता सकते हैं. इसमें ये भी है, तो वो आप आगे देखेंगे. देखिए जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है, शायद दिस इज नॉट द subjunctive. Je pense qu'il va pleuvoir. I think that is going to be rain, या कल बारिश होने वाली है. Il dit que ses enfants sont des idiots. ये सारे सिंपल. Vous êtes sûr que nous avons raison. Vous êtes sûr que nous avons raison. You are sure that we are right. nous avons raison. कि हम सही, आप श्योर हैं कि हम ठीक हैं, यानी हमारी बात ठीक है. और espère que la situation changera. तो ये सिंपल चीज में इन्होंने ये वर्ब इस्तेमाल होता है. इसीलिए इन्होंने यहाँ बताया कि हम l'indicatif, यानी प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों के अंदर प्रेजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं. मगर यही चीज जो है अगर हम इसको subjunctive अप्लाई करें तो subjunctive भी हो सकती है. Mais si ces verbes sont à la forme négative ou interrogative, अब किस कंडीशन में हो सकते हैं ये बता रहे हैं कि बट अगर ये वर्ब नेगेटिव फॉर्म में होंगे या सवालिया फॉर्म के अंदर होंगे. ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दूं आपको और इसी को मैं नेगेटिव बना दूं तो ये हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि कल बारिश होगी. इस तरह का कोई जुमला बोलूं तो मैं je ne pense pas qu'il pleut, तो फिर मैं इसको subjunctive कर दूंगा, je ne pense pas qu'il pleut demain. आ रहा है समझ में? जी जी, ठीक है. ये बताने का मतलब इन्होंने यही बताया यहाँ पर. ठीक है, पूला इंटरोगेटिव, या अगर आप इसको सवालिया आप करना चाह रहे हैं, सवालिया करना चाह रहे हैं तो आप subjunctive इस्तेमाल कर देंगे. Pour avoir le subjonctif, हम subjunctive यानी इसमें लिख सकते हैं. Cependant, ताहम, l'indicatif est toujours possible. वही बात जो मैंने बताई थी आपको, यानी इंडिकेटिव जो है यानी प्रेजेंट सिंपल वे में भी आप अपनी इस
ओपिनियन को या डिक्लेरेशन को या सर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट द बेटर वे इज टू यूज सब्जंक्टिव, ठीक है। अच्छा, c'est une différence de qualité de langue, ये एक डिफरेंस लैंग्वेज यानी क्वालिटी डिफरेंट है लैंग्वेज के अंदर। la langue soignée यानी ऐसी लैंग्वेज जो बड़ी केयरफुल लैंग्वेज है, एलिगेंट है, एक्रीट और लिखी जा रही है, तो उसमें नॉर्मली on a le subjonctif, हम उसके अंदर सब्जंक्टिव इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि जब हम कोई टेक्स्ट देखते हैं B2 के एग्जाम वगैरह में B1 के बाद, तो सब्जंक्टिव में ही सारे लिखे होते हैं, उसके अंदर जो चीजें सब्जंक्टिव। लैंग सैम्पल, अगर सिंपल जबान बोल रहे हैं या बोलने वाली आमतौर पर जबान है पागले और ना लैंग करती है, तो फिर हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये तो सर्टेन है कि जब आप कभी कोई लेटर लिखेंगे तो उसके अंदर अगर ये सारी चीजें एक्सप्रेस होंगी तो डेफिनेटली वो सब्जंक्टिव के थ्रू ही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये देखिए इन्होंने आगे जुमला भी दिया हुआ है, इत्तेफाकिया je ne pense pas qu'il pleuve ou qu'il pleuvra ou qu'il va pleuvoir, यानी ये जुमला दोनों ही चीजों से हो सकता था, मगर चूंकि इन्होंने ऊपर हमें बताया कि जी केयरफुल लैंग्वेज में और रिटर्न में नॉर्मली हम सब्जंक्टिव अप्लाई करेंगे, और ओरल में भी कर सकते हैं, नो डाउट डेफिनेटली करना चाहिए, बट ये कि ओरल में हमें चॉइस दी हुई कि हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बता सकते हैं। उसके बाद il ne dit pas que ses enfants soient des idiots, क्या मतलब है इसका बताएं। Il ne dit pas que, he did not say that his children are stupid. आगे इन्होंने एग्जांपल दी सो, यानी हम इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, il ne dit pas que ses enfants soient des idiots, pardon, we do not pronounce T, या il ne dit pas que ses enfants sont idiots, तो हम अगर sont इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट ये बेटर वे टू इज ऑलवेज utiliser le subjonctif. Êtes-vous sûr que nous ayons raison? अब देखें वही सेंटेंस इन्होंने सब्जंक्टिव में कर दिया। Donne-moi une seconde s'il vous plaît. Okay. Ok, d'accord, on est ici. Êtes-vous sûr que nous ayons raison? Or you could have said, êtes-vous sûr que nous avons raison? Simple languages. avons के साथ और नॉर्मल फॉर्मल लैंग्वेज जिसमें हम सब्जंक्टिव अप्लाई करेंगे वो हमारा आई हो जाएगा। अच्छा, ये पढ़िए मुझे और इसका मतलब बताइए प्लीज। Arbitrer des volontés et des sentiments. Il faut avoir deux sujets différents pour le verbe principal et pour le verbe qui suit que je ne veux pas que vous me trompiez. पहले मुझे ये बताएं कि ये इस बुलेट में मतलब इसका बुलेट का मकसद क्या है, मुझे समझाएं। With the verbs जो कि ये वॉलंटे जैसे यानी वॉलंटियरिंग वर्ब्स, वॉलंटियरिंग या सेंटिमेंटल वर्ब्स, ठीक है। हाँ, il faut avoir, it's necessary to have two different subjects for the principal verb, principal verb, et pour le verb qui or for that verb which is following que. हाँ, यानी वो ऐसा वर्ब जो कि के साथ यानी हो, ठीक है जी। तो अब ये क्या इन्होंने एग्जाम बताया, एग्जाम्पल je ne veux pas que, ठीक है, कीप रीडिंग प्लीज। je ne veux pas que vous me trompiez. वेरी नाइस प्रोनाउंसिएशन, क्या मतलब है? I don't want that you trompiez me. fool. अच्छा, मेक मी फूल यहाँ के आफी दिल लिखा हुआ है, बट ट्रम्पिए नहीं, ये तो खैर कुछ इधर पे है। इसका मतलब ये है कि je ne veux pas que vous me trompiez, मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओ, इसका ये मतलब है तुम मुझे यानी बनाओ, फूल बनाओ,
या मेरे साथ जो है मतलब मुझे गलती में डालो, प्रॉब्लम में डालो, थोम्पे करना बेसिकली जैसे कोई काम गलत हो जाए, तुम कहते हैं ना je me suis trompé, मेरे से गलती हो गई, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे, यहाँ पर ये जो सेंस है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे गलती करवाओ या मुझे बेवकूफ बनाओ। un homme souffre que sa femme soit infidèle, क्या मतलब बनता है इसका, बताएं। Un homme souffre que sa femme soit infidèle. सूफ्र का नहीं सूफ मतलब याद आ रहा। सफर करना, आई सपोज कि सफर करना, बर्दाश्त करना। तो अब एक और अनोम, ऐसे अनोम यानी कि एक आदमी समझता हाँ, है यानी अमेन, सिंपल या अमेन, जनरली अमैन। जनरली। अच्छा अमैन, लेकिन जनरल बात हो रही है। एक आदमी ख्याल करता है, कह सकते हैं इसको सूफ्र। हाँ, नहीं चाहता, नेगेटिव है। नहीं, अच्छा सूफ्र नहीं, que बेसिकली un homme souffre de voir sa femme partir। ओ सॉरी, मैं कोई और सेंटेंस पढ़ que रहा sa femme हूँ। un soit homme souffre que infidèle. sa femme soit infidèle, यानी man suffers when his wife is unfaithful। यानी इसका ये मतलब, यानी हाँ आदमी हाँ हाँ। जो है सफर करता है जब उसकी वाइफ जो है वो अनफेथफुल होती है। ठीक है जी, टू पॉइंट्स बेसिकली, सपोज पुअरली, सफरिंग, ठीक है जी, वही सफर करना वगैरह। अच्छा, si le sujet est le même, अगर सब्जेक्ट सेम है, on a une construction à l'infinitive, we have a infinitive construction। infinitive construction क्या हो सकती है? Les verbes de volonté sont suivis directement d'infinitive। Pour les verbes de sentiment, il y a deux entre le verbe et l'infinitive। Référence hier है। तो अब je veux aller voir un juge। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट अगर एक ही हो तो हम जो है वो इन्फिनेटिव में जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इन्फिनेटिव के साथ भी, और डायरेक्टली में इन्फिनेटिव, डायरेक्टली इन्फिनेटिव, हाँ बस ये इन्फिनेटिव में ही बोल सकते हैं। किस तरह? दो सब्जेक्ट है, je veux aller voir un juge, आई वांट, ये आ गई आपकी जी डिजायर, यानी जो इसकी सेंटेंस की जो हम पढ़ रहे हैं, aller voir un juge, this means I want to go to see a judge। un homme souffre de voir sa femme partir। तो मतलब कहने का मतलब यही सिंपल इज डेट के ये हम प्रेजेंट टेंस इंडिकेटिव टेंस में इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट है तो वर्ब एक से ज्यादा इस्तेमाल। il n'y a pas de futur subjonctif। फ्यूचर में सब्जेक्टिव नहीं है, c'est le présent du subjonctif qui donne l'idée du futur। यानी प्रेजेंट टेंस को ही इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर का आइडिया देने के लिए। किस तरह? Je doute qu'ils deviennent des amis। Je doute qu'ils deviennent des amis, मुझे शक है कि वो दोस्त बन जाएंगे ही बोलेंगे ज़ाहिर है। तो ये लिखा I doubt they will become a friend। ठीक दे है। विल, हाँ मतलब इससे यही निकलता है, ठीक है, फ्यूचर का। Donc, donne-moi une minute pour avoir l'autre page, la page suivante, s'il vous plaît। Voilà. On va voir ici emploi de l'indicatif ou du subjonctif। अब ये सिंपल यूज बता रहे हैं कि जी कहाँ subjunctive इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पर नॉर्मल प्रेजेंट इस्तेमाल हुआ है। तो अब देखें जी, इंडिकेटिव यानी नॉर्मल प्रेजेंट में je crois, je dis, j'affirme, j'espère, यानी ये सारी सेंटेंसेस में बोल सकता हूँ। subjunctive में जब हमें यानी subjunctive यूज करना होगा तो हम जो है इसको subjunctive भी वक्त जरूरत पे बना सकते हैं। ठीक है जी। qu'il viendra, देखें इन तीनों वर्ब के साथ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है j'espère qu'elle viendra। attention, exception, j'espère। अब इन्हीं वर्ब्स को इन्होंने वॉलंटरी यानी ये वर्ब देखें काफी मिलते हैं, croire, believe, affirm, espérer, désir, vous souhaite, मगर इन अल्फाज में इन्होंने यहाँ पर subjunctive इस्तेमाल किया है। je désire, je vous, डायरेक्टली आपकी इसमें विश और वॉलंटियरी है, और वो ओपिनियन से वर्ब है, यानी वो एक दर्जा काम है, आप समझ। ठीक है। तो किल भी है यहाँ पर, मिसाल के आर यू क्लियर ऑन दिस पेज, या ये तो बहुत इजी है मेरे यस लिए। यस। ठीक है। अच्छा, सेंटिमेंट्स अगर आपके हों,
j'ai peur, अगर आपको डर लग रहा है तो मिसाल के तौर पे we can say j'ai peur que il va partir, ये तो प्रेजेंट में हो जाएगा, j'ai peur qu'il il sort pour le cinéma. I'm doubtful, yeah, I'm afraid that he goes for the cinema. या वो कहीं सिनेमा के लिए चला गया हो, मुझे डर है कि या j'ai peur qu'il finisse demain. I am afraid that he finished tomorrow. He's finished it by tomorrow. Je suis heureux. I am happy. Je suis heureux. Qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'il part, qu'il soit gentil, वगैरह वगैरह. Je suis heureux qu'il soit gentil. मैं खुश हूँ कि वो एक अच्छा बन गया, अच्छा इंसान बन गया. सुआ सुआ subjunctive एथ में से आ जाएगा. आ रहे समझ में? जी जी. Je suis triste qu'il soit sanctionné. I'm sad that he must be condemned, he must be sanctions. यानी उस पर पाबंदी लग गई है वगैरह वगैरह. Je doute, je nie के लिए वही सारे वर्ब पे नी मींस डिनाई करना. langue courante, jeune, constat, pensez-vous qu'elle viendra. नॉर्मल लैंग्वेज में बता रहे हैं इस तरह इस्तेमाल कर देंगे. langue soignée, अच्छी लैंग्वेज में je ne peux pas, pensez-vous, ये दोनों ऑप्शन दिए. इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं था. अब le subjonctif après certaines conjugaisons, फिर हम अपने बुक पे आएंगे. हाँ, ये अहम चीज़ है. आप जरा पढ़िए और मुझे बताएं कि किस तरह इस्तेमाल क्या है. जरा पढ़ें प्लीज. Are you with me? Hello, are you with me, Mr. Iqbal? Voilà, tu lisais ça, partie 3, le subjonctif après certaines conjonctions. Oui, continue. Ok, les subjonctifs après certaines conjonctions. Voici les principales conjonctions suivies du subjonctif. Les autres conjonctions sont expliquées au chapitre 23. Chapitre 23. So, voici les principales conjonctions suivies du subjonctif. Here are the principal conjunctions followed with the subjunctive tense. Les autres conjonctions sont expliquées au chapitre. दूसरे जो हैं वो 23 पेज पे बताए गए हैं. तो अब jusqu'à ce que का मतलब है जहां तक के until, unless. मिसाल के तौर पे इस जुमले में जहां कहीं भी हम ये subjunctive इस्तेमाल करेंगे वहां फिर हमें लाजमी जो है यानी सॉरी जहां हम कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे ये वाले वहां हमें लाजमी subjunctive का यूज करना है. मिसाल के तौर पे पहले की एग्जांपल मैं देता हूँ, फिर इस तरह आप एक एग्जांपल दीजिएगा. मिसाल के तौर पे vous travaillez jusqu'à ce que j'arrive. Do you understand? Vous travaillez jusqu'à ce que j'arrive. You work, I used actually subjunctive in sentence. कि काम करो जब तक के मैं आ जाऊं. आ रहा समझ में? ठीक ठीक ठीक. हाँ जी हाँ जी. या parler en français jusqu'à ce qu'elle vienne. Speak French until unless she comes. ठीक है. Essayer de parler français jusqu'à ce que ton frère listen. Sorry, listen, ce que ton frère l'écoute, t'écoute वगैरह वगैरह. तो यानी इस तरह के सेंटेंस में हम ये इस्तेमाल करेंगे. अब बिया के although यानी अगरचा, बावजूद वगैरह वगैरह. तो आप इसको जरा सेंटेंस में इस्तेमाल करें, किस तरह कोई subjunctive अप्लाई करें बिया के ऊपर. ओके. bien que although पहले तो आप इसको सिंपल सेंटेंस पे although को यूज करेंगे अपने. bien que c'est difficile mais je sois content or mais je sois अच्छा, you wanted to say that although it's difficult but I am happy ना. इस तरह का ही कुछ बनाना चाह रहा था क्योंकि ठीक है, although वाले वर्ड्स में दो आते हैं सेंटेंसेस. सही है, ठीक है. तो उसमें
तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे tu, tu lis cette leçon bien que tu as bien fait, tu as bien compris. ठीक है, tu lis cette leçon bien que tu lis, bien que tu parles français. इस तरह भी हम जिस सेंटेंस में हमें ऑल्दो इस्तेमाल करना है रेडी टफ, तो हम उसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। pourvu के, प्रोवाइडेड, बशर्ते के, तो इसमें मिसाल के तौर पे कंडीशनल आपने कोई सेंटेंस बोलना है जिसके अंदर ये शर्त लगानी है सर, इस तरह जैसे लास्ट टाइम आई थिंक हमने किया था, j'irai à la montagne bien que il neige sur la montagne, ठीक है, आई रिपीट, j'irai à la montagne bien qu'il neige sur la montagne, मैं पहाड़ पर जाऊंगा बशर्ते के पहाड़ी पर बर्फबारी हो, तो हम इसको इस तरह इस्तेमाल कर, या pourvu के में आप ये बोल दें j'irai sur les montagnes pourvu qu'il neige trop, I will go on the mountain बशर्ते के वहां पर बर्फ हो वगैरह avant के, before, तो इसको अपने सेंटेंस में पहले नॉर्मल फ्रेंच में इस्तेमाल करें, avant के हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं जुमले में, फिर इसको subjunctive बनाइए। यस प्लीज। मिसाल के तौर पे वी कैन से tu finissais या tu mangeais avant qu'il vienne, you eat before that she comes, ठीक है, या tu vas à l'école avant que les congés commencent, avant que les congés commencent, you go to school before the holidays starts, ठीक है, इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। pour que, in order to that, यानी ताकि, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। so je répète encore une fois pour que tu comprennes bien, I repeat, je répète une fois encore pour que tu comprennes bien, अगर हम इसमें से तू के तो एक दफा ही बोलेंगे, je répète encore une fois pour que tu comprennes bien, I repeat another time in order to make you understand, वगैरह वगैरह। दो pour के, अब जरा इसको कोशिश करें, दो pour के किस जुमले को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेंटेंस में नॉर्मल, for fear that, अच्छा, आई एम गेटिंग इन वन माइंड, मिसाल के तौर पे suppose that j'ai déposé mon enfant pour qu'il soit en retard pour l'école. Aujourd'hui, j'ai déposé mon enfant à l'école pour qu'il soit en retard pour la classe. आज मैंने अपने बच्चे को स्कूल में जल्दी छोड़ दिया है इस डर के कि वो क्लास से लेट ना हो जाए, ठीक है जी। तो अब आप अगला जो है मुआ के इसी तरह एक जुमला सोचें एंड गिव मी वन सेकंड। यस, वाला मुआ के, unless, so did you think one sentence, anything? je dois t'apprendre à moins que je passe l'examen. Je passe l'examen. Je passe l'examen. How can you form it again, please? Je dois apprendre. Je dois t'apprendre français à moins que je passe l'examen. सही है, very good, very good try. You wanted to say कि मैं जरूरी पढ़ूं यहाँ तक कि मैं इम्तिहान पास कर दूं, ठीक है। So इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, why not, sure. Je dois apprendre bien français à moins que je parle, ठीक है। Je dois comprendre des leçons à moins que je comprenne, वगैरह वगैरह, आगे बस subjunctive इस्तेमाल करना है à moins के सेंटेंस में, sans que, without, sans que, without, इसको भी हम इसी तरह किसी सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब आगे आ जाए जी,
Le déserteur a marché dans le désert jusqu'à ce qu'il meure de soif. अच्छा अच्छा, ये अपना डेजर्टर बेसिकली यहाँ तो फिर यानी जो सहराई घोड़ा वगैरह जो होता है वो चला, इसका ही मतलब है। यानी कहाँ तक के इन द डेजर्ट जिसका से किल में जब तक के वो भूख से नहीं मर जाए, ठीक है। उसके बाद il parle de son métier, he is speaking या he speaks about his job, bien que sa femme ne fasse pas attention, हत्ता के या हालांकि उसकी बीवी तवज्जो नहीं देती है। I repeat, il parle de son métier, bien que sa femme ne fasse pas attention, हालांकि उसकी बीवी तवज्जो नहीं देती, यानी अपनी अपने जॉब के बारे में बताता है मगर उसकी बेगम तवज्जो नहीं देती। अच्छा, अब आ जाएं जी यहाँ पर। On emploie le subjonctif avec les conjonctions avant que, pour que, depuis que, sans que. On a deux sujets différents dans la préposition principale et dans la préposition subordonnée. C'est le sujet du verbe préposition représentée. यहाँ पर अच्छा ओके अगेन यहाँ पर जो है बस इन्होंने थोड़ा सा इंडिकेशन कराई है कि on emploie le subjonctif avec les conjonctions avant que, pour que, depuis que, sans que. तो यूज है कि हम इस्तेमाल करते हैं subjunctive इन सेंटेंसेस के साथ का on a deux sujets différents, जब हमारे पास दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं या टॉपिक होते हैं। should actually has the meaning of subject also. Dans la proposition principale, in the principal proposition क्या है, et dans la proposition subordonnée. C'est le sujet des deux propositions représentent la même personne. अब बता रहे हैं कि अगर ये जो भी टॉपिक है ये अगर दो यानी प्रोपोजिशंस रिप्रेजेंट करे एक ही आदमी के लिए, एक ही चीज के लिए, तो on a une construction avec une préposition et un infini. तो हम इस तरह यानी कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। इस तरह अबों के में तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अबों दी भी इस्तेमाल होता है। अबों दी सिंपल जो है इसके साथ इस्तेमाल होगा इन्फिनिटिव के साथ। मिसाल के तौर पे इसको अगर मैं या इस वाले को इस्तेमाल करता हूँ अवन दू के, तो हम इस तरह बोल सकते हैं n'oubliez pas de prendre le petit déjeuner avant de partir. Don't forget to take breakfast before leaving, avant de partir. तो ये बताना चाह रहे हैं। अब आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर।